MHRD, that is Ministry of Human Resource Development for selected higher education institutes. Government of India has established MHRD's Innovation Cell, MIC, to systematically foster the culture of innovation amongst all the higher education institutions, HEIs. Subsequently, to further the agendas, IMS has organized this session under the umbrella of IIC. I, Anshul Mahajan, would like to welcome our guest, Engineer Lavneesh Talwar, Sir, HOD Department of Electrical Engineering, YCE, Dr. Meenakshi Sharma Ma'am, Director IMS, all the faculty members of IMS, and all the students of BBA and BCA to this expert session. Our esteemed guest, Engineer Lavneesh Talwar Sir, is here to deliver an expert session on innovation, design, and design thinking. I request Sir to please come on the stage. Thank you so much for inviting me. First of all, I would like to thank Director IMS, Dr. Meenakshi Sharma, who had given me the platform to interact with people. I would also like to thank all the faculty members of MBA, MCA, BCA, and MCA, and most important, the student part. We all gathered here for a seminar, and that seminar is basically related to the topic innovation, design, and design thinking. I hope at the end of the seminar, you people must know about what do you mean by this innovation, how this innovation can be helpful, and the most important thing that with the help of this technological transformation, we can achieve the higher goals. I will divide my presentation in 3 modules. First 15 minutes or less than 15 minutes, we will discuss about the topic innovation. After that, 10 to 15 minutes, the word is commercialization. And after 15 minutes, all the participants who are present in this webinar. Second, in this seminar, to create more awareness or it will not become as boring, I will use both the. There is some appreciation from Yogananda Parasrat. Okay, so can we start? So again, thank you so much, Dr. Meenakshi ma'am, for inviting me to give the platform to interact with people. Can you hear me? Actually, this was this is my 22nd talk as a resource person, and whenever I deliver the talk, I will take some code, and today the code will be taken by Ratan Tata. You all know about Ratan Tata, a big brand automobile sector leader, and according to him, I don't believe in taking right decisions. I take the decisions and make them right. So with this we can start the word that is called as innovation. As I have already told you that I have divided the whole seminar into 3 categories, that is innovation, commercialization, and technological transformation. The word is innovation. Can anybody who is present here tell me about what is innovation? क्या है innovation? कोई समझा सकता है? Presenting new ideas. Presenting new ideas. More refined. Doing things in creative manner. Doing things in a creative manner. Very right. Innovation is something related with the word that is called as invention. If we talk some years back, we are talking about inventions. But nowadays, now a time will come when we not talk about inventions, we are talking about innovations. It's the high time when we have to innovate your idea. As far as me is concerned, I am coming to electrical engineering department. I have done my engineering in electrical. So I give you the example. Electric bulb. That electric bulb everybody knows. Idea के accordingly कैसे reform लाते हैं. मैंने अपनी presentation में कोशिश ये की है, अपनी तरफ से कोशिश की है कि इस lecture को थोड़ा सा interesting बनाऊं और मैंने सारा
कैंसिल कर दिया इसमें बिकॉज़ क्योंकि लोग सब पढ़ते हैं बुक्स पे है गूगल पे है मैंने ज्यादा फोकस दिया है पिक्चर्स पे या फोटोग्राफ्स पे सो दैट यू कैन गेट एन आईडिया इस रूम से बाहर जाने के बाद आपको तीन वर्ड तो एटलीस्ट याद है यार इनोवेशन क्या है कमर्शियलाइजेशन क्या है टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन क्या है सेकंड you have a telephone and a smartphone in earlier days we are using the dialer telephone 0 1 2 3 for communication purposes वो आपकी इन्वेंशन थी बट आज हम लोग को डायलर फोन्स तो मार्केट से ऑब्सोलीट हो चुके हैं आज हमारे पास we have a smartphones and this smartphone is basically an innovation likewise you have TVs television शायद जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ बैठे हैं आप लोगों ने वो जनरेशन नहीं देखी बट एज अ फैकल्टी मेंबर्स हम लोगों ने वो जनरेशन देखी है हमारे घरों में पुराने टाइम पे टीवी होते थे उसको ऑन करते थे इट विल टेक 5 to 10 मिनट्स वो ऑन होने में ब्लैक होते बिकॉज़ वहां पर क्या था कार्बन टेक्नोलॉजी थी वैक्यूम ट्यूब टेक्नोलॉजी थी आज क्या है आपके स्मार्ट टेलीविजन्स आप बाजार से लेके आइए हैंग इट ऑन अ वॉल यहां पसंद नहीं आया उठा के यहां लगा दीजिए सो दैट इज कॉल्ड एज एन इन्वेंशन सॉरी इनोवेशन you have desktops and laptops everybody using and this fifth product I think most of the segment most of the consumer nowadays we can use this type of earpods चाहे वो फैशन के लिए है चाहे वो शो के लिए है but this is innovation according to Adam Smith according to him if someone sells a car और someone sells a physical quantity हमारे इंडिया में वर्ल्ड वाइड ग्लोब में कुछ ऐसे रिनाउंड इंजीनियर्स थे जिन्होंने अपनी 10 to 4 जॉब को क्विट किया जस्ट टेक एन आइडिया वी कैन टेक एन एग्जांपल जितने भी यहां पर स्टूडेंट्स बैठे हैं ऑल आर यूजिंग Zomato एंड Swiggy व्हाट इज दिस Zomato एंड Swiggy क्या इनका कोई अपना किचन है या इनका कोई अपना क्लाउड किचन है नहीं दे आर ओनली द सर्विस प्रोवाइडर Now you can think, आप जरा ये सोचिए कि जो Zomato का फाउंडर है या जो Swiggy का फाउंडर है उसके पास सिर्फ क्या था एक आइडिया आप यहां बैठे हैं आपका दिल कर रहा है आपने गांधीनगर के किसी फेमस शॉप का चिकन खाना यू हैव जस्ट प्रेस एन आइडिया आपका किचन आपका चिकन आपके घर पर डिलीवर कर दिया जाए दिस इज कॉल्ड एज एन इनोवेशन Innovation comes with these things. We have an idea, processes, development, inspiration, growth, vision and creativity. When you combine all these things, you can automatically setting will be done. So it is an innovation under adopt. बात वही आ गई मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं चैनल को सेट करता रहूंगा प्रेस इट ऑटोमेटिकली ट्यूनिंग होगी रुक जाएगा वर्ड इज रेडियो पुराना भी था वो इन्वेंशन थी बट उसको इनोवेट किया आपके इस सेट से This example I have already discussed. पुराने टाइम पे एक छोटा सा टीवी ऑन करो आधा घंटा बैठे रहो फिर उसमें ब्लैक एंड व्हाइट टीवी आपकी पिक्चर बनती थी टाइम चेंज कलर टेलीविजन टाइम चेंज फ्लैट स्क्रीन टाइम चेंज एलसीडी टाइम चेंज एलईडी all this is done will be processes underdone due to innovation emails Instagram Facebook Twitter सब कुछ आप लोग क्या कर रहे हैं उस मोबाइल फोन से कर रहे हैं so again you have an innovation we are using these Kangli meters as an energy manager I have done my MTech in energy management energy manager हम इसको कभी भी मतलब वो नहीं करते बढ़ावा नहीं देते because again there is a technical aspects to be there तो आज की डेट में अगर ये यूज करते भी हैं तो लिमिटेड स्टॉक है बट आजकल हम लोग यूज कर रहे हैं तो अगेन यू हैव एन इनोवेशन अंडर एलिमिनेट व्हीकल्स ई व्हीकल्स जम्मू में तो अभी रिसेंटली ई रिक्शा का बड़ा वो प्रचार हो गए हैं चल पड़े हैं वो जनरेशन को आपने देखी एक साल पहले सोचिए क्या ई रिक्शा जम्मू में थे नहीं थे सो दिस इज अ रीअरेंज क्वेश्चन टू ऑल द ऑडियंस कैन शाहरुख खान जी यूज फेयर एंड लवली तो व्हाई ही इज प्रमोटिंग दिस फेयर एंड लवली द रीजन बीइंग फेयर एंड लवली इन शॉर्ट हायर आई कैन यूज द वर्ड हायर उन्होंने इनको रखा हुआ है कि आप हमारे ब्रांड की प्रमोटिंग करिए 100 में से 2 बंदे ऐसे होंगे जो बोलेंगे यार शाहरुख खान अगर यूज कर रहा है फेयरनेस के लिए तो मैं भी यूज करता हूं 2 बंदे एग्जांपल दे दो जरा ये सोचिए कि अगर आपकी रिसर्च थोड़े दिनों के लिए बंद कर दी जाए तो क्या होगा
खत्म हो जाएगी एग्जैक्टली। So this is the idea, sorry, this is the role model of a total product. You have an idea, that based idea, research will be done, innovation can be carried out. In the innovation, there is a term pre-commercialization, and when the product is ready to serve in the market, final commercialization will be done. अब यहां पर एक क्वेश्चन ये आता है, मैं पिछले 15-20 मिनट से इनोवेशन बोली जा रहा हूं, क्या हर एक इनोवेशन सक्सेसफुल है? क्यों? इनोवेशन का फेलियर का रीजन क्या है? कोई बता सकता है? लेट अस सपोज मार्केट अडॉप्ट करती है, फिर लेट अस सपोज मेरे कहने में एक लड़की सोचती है मार्केट अडॉप्ट करती है, फिर इनोवेशन फेल होती है, तो फिर रिसर्च एग्जैक्टली हु सेज रिसर्च। इनोवेशन फेलियर का सबसे बड़ा रीजन है रिसर्च। आई विल गिव यू अ वन केस स्टडी। दिस केस स्टडी, कितने लोग हैं जिन्होंने टाटा नैनो कार को देखा है, या कोई है जिसके पास टाटा नैनो कार है? एनीबॉडी? मैंने जानबूझ के ये दो क्वेश्चन साइमल्टेनियसली पूछे। पहले मैंने पूछा कितने लोग हैं जिन्होंने टाटा कार नैनो कार देखी है, एवरीबॉडी रेज द हैंड। सेकंड क्वेश्चन इज कितनों के पास टाटा नैनो कार है? किसी के पास नहीं। व्हाई? इट इज द चीपेस्ट कार। आपके पास यार, आपके पास। सी, टाटा नैनो कार was launched in India in some year, but the question is behind why Tata Nano car is a failure. कोई बता सकता है? Anybody? प्रॉपर फीचर्स नहीं है। फीचर से कोई एक दो फीचर्स बता सकते हैं? मार्केटिंग गलत हुई थी सर। हाँ जी, मार्केटिंग गलत हुई। रॉन्ग। एक प्लीज वन बाय वन। हाँ जी बेटा। हाँ जी सर इस पे चीपेस्ट बोल दिया था इसलिए। चीपेस्ट तो थी वो 1 लाख की सर, लेकिन बोल दिया status था। के लिए लेते थे ना। सर चीपेस्ट थी लेकिन बोल दिया था जिससे लोगों को इस पे रिलायबिलिटी नहीं रही। ओके। और कोई स्पेशियस नहीं थी। एडवर्टाइजिंग। बेटा जब टाटा नैनो कार मार्केट में लॉन्च किया गया था ना, आप अपने पेरेंट्स से या अपने टीचर से पूछ सकते हैं उस टाइम मार्केट में इतना मतलब शोर मचा था कि उसकी एडवांस बुकिंग लकी ड्रॉ से गाड़ी निकली थी। हम ये नहीं कह सकते कि मार्केटिंग नहीं हुई, हम ये नहीं कह सकते कि चीपेस्ट कार का टैग था इसलिए लोगों ने नहीं खरीदा। लिटरली इन 2000 समथिंग ईयर जब टाटा नैनो कार ऑफिशियली लॉन्च की गई थी, उसकी मतलब पर्ची सिस्टम निकला था, गाड़ियां इतनी निकली थी, आज नहीं है। नाउ द क्वेश्चन इज क्या हुआ क्या था? टाटा नैनो कार वाज मेड बाय रतन टाटा जी, फाउंडर मेंबर। अब हुआ क्या? रतन टाटा जी ने अपने एक दिल्ली एक्सपो में अपनी स्टोरी को नरेट किया था आफ्टर द फेलियर ऑफ द कार। उनका कहना क्या था, एक बार वो अपने ड्राइवर के साथ अपनी गाड़ी में जा रहे थे, रेनी सीजन था, सडनली ट्रैफिक लाइट्स पे उनकी गाड़ी रुकी। उन्होंने अपने विंडो पैन से बाहर देखा, एक मिडिल क्लास फैमिली, फादर वाज राइडिंग अ स्कूटर, टू व्हीलर, हमारा बजाज, वो भी उन्हीं का प्रोडक्ट था। इंडस्ट्री का जेम बोला जाता है, बिकॉज़ रतन टाटा इज द जेम ऑफ इंडस्ट्री। आपके जितने भी ट्रक्स, बसेस, जितने भी हैं, सारे टाटा के। उन्होंने कहा कि अगर मुझे इतना बोला जाता है तो क्या मैं इस कस्टमर को, इस सेगमेंट के कस्टमर को सस्ती कार नहीं दे सकता, जिस कार की कॉस्ट 1 लाख रुपया हो। एक मिडिल क्लास फैमिली उस कार को ले सके ताकि ये जो अनसेफ जर्नी ये कर रहे हैं इससे छुटकारा मिले। He immediately go to the office, called the innovation team, called the research team and proposal दिया गया कि मुझे मार्केट में 1 लाख की कार लॉन्च करनी है at any cost, जो मर्जी करना है करिए, जो करना है। इनोवेशन टीम सिट टुगेदर, बैठे काम करना शुरू कर दिया कि हम भाई कार बनाएंगे, डिजाइन बनाएंगे। देने के बाद प्रपोजल दे दिया R&D। समझ आपने कहा था इनोवेशन फेल हुआ R&D की वजह से, और होता ही R&D की वजह से फेल। R&D के बाद जब ये प्रपोजल आया तो R&D ने कहा ठीक है जी मार्केट में कार लॉन्च करेंगे, लेकिन यू ऑल नो जब आपको कॉस्ट को रिड्यूस करना है देयर आर सर्टेन कॉस्ट कटिंग फैक्टर्स। तो उन्होंने क्या किया, ये 4 फैक्टर्स लगा के भाई टाटा नैनो कार का सबसे बड़ा जो पॉइंट
पॉइंट था कॉस्ट कटिंग के केस में, आप कह रहे थे आपके फ्रंट के पास है, जाके देखना आपके जो फ्रंट मिरर है वहां पर इंस्टेड ऑफ 2 वाइपर देयर इज 1 वाइपर। सबसे पहला पॉइंट कॉस्ट कटिंग। नंबर 2, हर एक 4 व्हीलर में एक एक्स्ट्रा व्हील होता है, दैट इज कॉल्ड एज स्टेपनी। टाटा नैनो कार में भी स्टेपनी दी गई, लेकिन वो जो स्टेपनी थी वो लाइटर दी गई। उस स्टेपनी की वजह से आप ज्यादा डिस्टेंस कवर नहीं कर सकते। इट इज ओनली फॉर 5 to 10 किलोमीटर कॉस्ट कटिंग। नंबर 3, एयर बैग शुड बी रिमूव्ड। And number 4, that is a big thing happen, the failure of the car. जितने लोगों ने भी टाटा नैनो कार देखी है जो आपके फ्रेंड के पास है, उसका जो फ्यूल इनलेट है वो इंजन के साथ ही है। नॉर्मल हमारी गाड़ियों में क्या होता है, इंजन आगे और फ्यूल इनलेट पीछे। क्यों? क्योंकि एज ए टेक्निकल आपके इंजन के अंदर कंबस्शन होना है, आग लगनी है, और वहीं पर अगर आपने कंबस्टिबल मटेरियल रख दिया तो गाड़ी की क्या हालत होगी। आज भी जिनके पास टाटा नैनो कार है, जब वो पेट्रोल पंप में जाते हैं ना तेल डलवाने के लिए, वो बोनेट बोलते हैं, क्योंकि डिक्की तो है ही नहीं, पेट्रोल टैंक तो है नहीं पीछे। दिस प्रपोजल वाज गिवन बाय R&D एट एनी कॉस्ट। काम करना था, रतन टाटा जी ने कहा डिजाइन करिए, इनोवेशन हो गई, मार्केट में कार लॉन्च कर दी, मार्केट में कार लॉन्च हुई। सडनली व्हाट हैपेंस इन द नेक्स्ट बजट सेशन, स्टील के प्राइसेस